Hello everybody. Today we are going to start with foundation course SY Same 3 Unit 1, that is related to human rights violation and redressal mechanism. Human rights violation मतलब जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है उनके लिए जो भी सिस्टम्स है, जो भी प्रोटेक्शन मेजर्स है, वो प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या है और उनके अधिकार कौन से हैं, हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, what are our rights are there, how we can able to implement those uh, in our life, that we are going to see now. Okay, so let us begin. Foundation course unit 3, as I said, human rights violation and redressal. Now let us begin with the first thing. What do you mean according to the Universal Declaration of Human Rights, UDHR 1948? Human rights, or we can say even fundamental rights, are there. By birth we are getting certain rights, and as a human being when we are born we are getting certain rights by birth, and they are being protected even by the constitution, and that is why human rights or fundamental rights, that is what we are always talking about. So what are our rights are there? Now human rights are basically divided into three categories: civil rights, political rights, ecological and social rights. Now civil rights, as a human being we are staying in a society, so for us as a member of the society, we are having right to live, right to have a freedom, liberty and dignity as a human being. So by birth we are getting the rights, inherent dignity. इनहेरेंट मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग करके, एक मैन करके हम लोगों ने जन्म लिया है. सो वी आर गेटिंग द राइट to live on the earth surface, and besides that these all rights we are going to enjoy throughout our life. Now let us begin with the first, civil rights. Civil rights, it includes rights to equality. There should not be any discrimination among men, women, as well as caste, culture, religion, place of birth, anything in that. There should not be any discrimination, there should not be any inequalities. So civil rights are equal to all, everybody, whether it is rich or poor, in front of law they are equal. Right to freedom of speech and expression, this is again one of the civil rights we are having. We can able to speak whatever our thoughts are there, we can able to share it with anybody, we can express our anger. बहुत सारे बार राइट्स वगैरह होता है ना, ये एंगर की वजह से ही होता है ना, सब लोग गुस्सा करते हैं तो नेचुरली वो एंगर कहीं ना कहीं तो बाहर निकलता है और राइट्स हो जाते हैं. सो स्पीच बोल सकते हैं, किसी के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, किसी के फॉर भी बोल सकते हैं. कहीं पे भी अगर भाषण वगैरह चलता रहता है ना, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी लीडर्स हैं उनका भाषण चलता रहता है, वो कितनी सारी बातें बताते रहते हैं, उसमें से क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए अल्टीमेटली अपने पे है. बट दोज पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आर, दे आर हैविंग द फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस. At the same time, human beings, we are born as a human being, so within India we are having the rights of movement and residence. मूवमेंट मतलब हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, अगर हमें वहाँ पे जॉब मिल रहा है तो वहाँ पे हम लोग रह भी सकते हैं. अगर आप लोगों ने अभी देखा रहेगा, बहुत सारे लोग जो पेंडेमिक के टाइम यहाँ पे रहते थे, वो बहुत सारे लोग अपने नेटिव प्लेस चले गए, वहाँ से वो यहाँ पे आए थे, मुंबई जैसे शहर में आए थे, मुंबई के आसपास के शहर में आए थे. किस लिए? क्योंकि उनको इनकम सोर्स मिल रहा था. तो अगर हमें इनकम का सोर्स है और हमें वहाँ पे रहने के लिए जगह मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली वी कैन परमानेंटली रिसाइड ओवर देयर. कई बार ऐसा होता है कि कहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है मगर इनकम सोर्स है, तो कई लोग अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना के भी, स्लम एरियाज़ डेवलप करके भी वहाँ पे रहते हैं. तो दिस
right we are having as a part of social right. पीसफुल लाइफ किसको नहीं चाहिए? ज़्यादा झगड़े होंगे तो डेफिनेटली मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर सिविल राइट्स हो गए तो डेफिनेटली बहुत सारा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्पॉइल हो जाता है। इसलिए पीसफुल लाइफ भी उतना ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम लोगों के पास कितने टाइप्स का प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, या ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम और सिंस द एंशियंट टाइम many people used to have their own land as a basic property. At the same time many animals, कितने पास किसके पास कितने कैटल्स है, कैटल्स के हिसाब से रिचनेस काउंट होता था। तो प्रॉपर्टी इज़ एन नंबर ऑफ काइंड्स विच वी आर बिलोंगिंग, इट इज़ आवर ओन थिंग। Next is freedom of religion. In case of India, we are following many types of religions, and that is why we can able to convert our religion. एक हिंदू अगर मुसलमान बनना चाहता है तो बन सकता है, एक मुस्लिम अगर क्रिश्चियन बनना चाहता है तो बन सकता है। ऐसे कुछ भी अपने यहाँ पे बंधन नहीं है। तो इंडिया में ये है कि अगर आपके यहाँ पे मल्टी रिलीजियस है and you want to adopt the any religion which you liked, you are having the freedom to adopt that religion. At the same time, after adopting, if you feel that that religion does not suits to you, we are not able to adjust with that religion, then we can come back to our own religion by birth, whatever we are having. That freedom we are having, that all comes under the category of civil rights. Now let us move to the next, political rights. What is political? It is definitely decided by the politicians, by our eminent politicians who have formed the constitution, and they are being protected by the constitution. Okay, so right to live in a society with law and order by following each and every rules and regulations. It may be related to ट्रैवलिंग, इट मे बी रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, इट मे बी रिलेटेड टू अभी कोविड के टाइम में जो हम लोगों ने मास्क लगाना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए, ये सब कुछ रूल्स जो आ गए, वी आर बीन फॉलोइंग दैट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी. सो वी हैव टू फॉलो. अगर हेलमेट डालना है तो डालना है. आज ही मैंने एक ये टीवी पे एक देखा, न्यूज़ आया था कि अगर आपके पास दिमाग है तो उस दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेलमेट ज़रूर यूज़ करोगे. तो ये रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करना चाहिए. राइट टू नेशनलिटी मतलब हम लोग को इंडिया में अगर इफ़ वी आर बॉर्न इन इंडिया, वी आर डेफिनेटली बाय बर्थ वी आर इंडियन. बट इफ़ समबडी इज़ स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 15 years or for 15 years, then he can adopt the Indian nationality even. So he can also have the freedom of dual nationality. Indian constitution also gives us dual nationality. That means that person can be Indian as well as they can be the citizen of other country like America, UK, like that. So dual nationality भी हम लोग ले सकते हैं. या इंडियन तो we are all born as a Indian, so Indian nationality we always have. होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, MPSC UPSC करने के बाद हमें जो भी पब्लिक सेक्टर में काम मिल जाता है, आयुक्त बन सकते हैं हम लोग, IPS अधिकारी बन सकते हैं, तो वो हम लोग ऑफिस वो जो है वहाँ पे कहीं पे भी काम कर सकते हैं. दूसरी बेसिक जो बात है दैट इज़ रिलेटेड टू वोट. I think so everybody is that 18, a person who is having age of 18 and 18 plus can vote. Am I right? So does not mean compulsorily you have to vote. ऐसे भी लोग समझते हैं. कई लोग तो ऐसे भी है कि छुट्टी मनाते हैं उस दिन और कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, they are going for picnics and all these things, but they don't vote. Or if somebody forces them to vote, then also they are not going to vote. ऐसे भी होता है. As it is, we can say that in case of India hardly 70% तक या 72% तक का वोटिंग ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है. ओके,
Then next is right to represent or stand in election. I think so you are quite aware that बहुत बार आप लोगों ने मूवीज़ में पिक्चर्स में देखा हुआ रहेगा कि कोई भी एक गुंडा रहेगा ना, वो भी इलेक्शन के लिए खड़ा रह सकता है. कोई पर्सन प्रिजन में है, कैद में है, वो भी इलेक्शन के लिए खड़ा रह सकता है. एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एनी पर्सन कैन स्टैंड for the election and he can contest the election. Okay, now let us move to the next one, economic and social rights. It makes an individual self sufficient and self reliant in basic needs. अगर economic right मतलब it is related to the human beings income. At the same time social rights it is related to living in a society. समाज में हमें रहना है और उसके साथ साथ उतना पैसा भी हमें कमाना है कि हम लोग खुद पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, दूसरे पे नहीं. ओके, तो इकोनॉमिक राइट्स गिव्स अस द राइट टू हैव द इनकम, प्रॉपर्टी, एज वेल एज वी कैन रिसाइड इन एनी प्लेस. जो हम लोगों ने सिविल राइट्स में जो पढ़ा था वो भी एक है. सो डेफिनेटली दैट इज़ बीन पॉसिबल. एट द सेम टाइम राइट टू वर्क. राइट टू वर्क मतलब कोई भी किसी भी ऑफिस में, कोई भी कहीं पे भी काम कर सकता है. उसके लिए आपका किसी जात का होना या ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, किसी कास्ट का होना ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं. नो डाउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस देर आर सर्टन कोटास विच आर बीन केप्ट फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज नाउअडेज द मराठा आरक्षण वगैरह, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना रहेगा. तो ये तो है, मगर सभी लोग कहीं पे भी काम कर सकते, ये हमें अधिकार मिला है. Next is equal pay for equal work. Equal pay for equal work. When the men and women are working in the same office, if the women is getting less income, less salary, and the man is getting more salary, then this is inequality. Equal pay है तो काम जितना है, काम अगर इक्वल है तो पे भी उतना ही इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिटर्न राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन. नौ सर्व शिक्षा अभियान के बारे में शायद आप लोगों ने सुना रहेगा. कोई भी शिक्षा के बिना नहीं रहना चाहिए, इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट्स के कितने सारे ऐसे केसेस इंडिया में पाए गए. और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, मेनी चिल्ड्रंस आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द एजुकेशन. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप एंड अनटचेबिलिटी. तो वल्नरेबल ग्रुप मतलब कौन है? जो इमोशनली वीक है, फिज़िकली वीक है, सोशली वीक है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. उनका इनकम, पुअर पीपल जिसे हम लोग कहते हैं ना जनरली, तो जो लोगों के पास उतना इनकम नहीं है, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. इफ़ वी आर कंसिडरिंग दैट इन केस ऑफ इंडिया we are having nearly 25% of India's population stays below the poverty line, so that all 25% of population comes under the vulnerable group. They can be affected by anything. Okay, so vulnerable means anybody who is exposed to possibilities of being attacked or harmed either physically और इमोशनली. इमोशनली ब्लैकमेल अगर छोटे बच्चे को करना है तो डेफिनेटली इमोशनल ब्लैकमेल तो वो हो ही जाते हैं. वुमेन्स आर ससेप्टेबल फॉर इमोशनल एंड इवन फिजिकल अटैक्स. एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसेबल्ड्स, फिजिकली, मेंटली, विजुअली डिसेबल्ड्स, और वी कैन कंसिडर द एल्डरली पर्सनस. एल्डरली मतलब क्या है? 60 प्लस नहीं, आज के ज़माने में हम लोग बोलते हैं 65 प्लस जो है, 65 प्लस के उम्र के जो है, तो वो सभी ओल्ड एज ग्रुप में आते हैं. उसके साथ साथ जो सोशली बैकवर्ड मतलब कौन है? कि जो लोगों को इतना इक्वालिटी, कहीं पे भी उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, फिज़िकल इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी रहने के लिए नहीं जगह मिल रहा है, वो सब आ जाते हैं. या किसी रेप केसेस है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कहीं पे भी कई वुमेंस को भी एसिड अटैक्स, आपने मूवीज़ भी देखा रहेगा दीपिका पादुकोण का. तो ऐसे सब जो है जिन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेगर्स, जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशली वल्नरेबल.
ओके। सो फिजिकल वल्नरेबल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इकोनॉमिक जो पुअर है, सोशली एंड इमोशनली जो मैंने बोला अभी वुमेन्स है, चिल्ड्रंस है, उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो दैट कम्स अंडर द वल्नरेबल्स। नेक्स्ट इज़ अनटचेबिलिटी, हिंदी में जिसे जनरली कहते हैं अछूत, नॉट टू टच टू दोज पीपल हु वेयर कॉल्ड एज दलित्स प्रीवियसली और क्षुद्रास। हम लोगों ने शायद लास्ट ईयर में 4 वर्ण सिस्टम इंडिया में जो है वो सीखे हुए हैं, उसमें से लास्ट जो 4th है वो है क्षुद्रस। क्षुद्रस मतलब जिनको हर वक्त निग्लेक्टेड ऐसे ही सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसे माना जाता था, ठीक है। दे वर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क बट दे हैव रिमेन वेरी पुअर, दे हैव ऑलवेज बीन सफरिंग फ्रॉम हंगर, माल न्यूट्रिशन, ऐसे जो है। तो जो लोग हम लोग बोल सकते कि ट्राइबल्स है उन वो सब आते हैं हमेशा क्षुद्रस कैटेगरी में और दलित कैटेगरी में। तो अछूत जो लोग हैं जिनको छूना भी पाप माना जाता था एक समय में इंडिया में, तो ऐसे सब जो लोग हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, नाउ विच आर द पीपल हु आर कमिंग अंडर द वल्नरेबल ग्रुप, ये मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। दोज हु आर वेरी पुअर, दोज हु आर वर्किंग एज अ रैक पिकर्स, कहीं सोने को नहीं मिल रहा है, अपनी जो बेसिक ज़रूरत है वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही है, ऐसे जो लोग हैं, मेंटली एंड फिज़िकली हैंडीकैप जो लोग हैं, बेगर्स जो लोग हैं, वो सब आते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स में। और अनटचेबिलिटीज़ में कौन आते हैं? जो भी ट्राइबल्स है, जो भी अछूत लोग हैं, वो सब आते हैं ट्राइबल्स में। यहाँ पे उनकी कंडीशन भी आप देख सकते हो कैसे रहते हैं वो जनरली, ठीक है ना, पहनने के लिए बराबर से है ना खाने के लिए बराबर से, ये सब सिचुएशन है। उनका उद्धार करने का काम बेसिकली किसने किया? शुरुआत तो की डेफिनेटली महात्मा गांधी जी ने, और उन्होंने दलित्स को एक स्टेटस देने की कोशिश की और उनको बौद्ध करके माना गया, ठीक है। तो ये सब सिस्टम बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बहुत सारा कोशिश किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद literate, not only literate, he has even was basically the part of major pillar we can say of our constitution. Next person we can say who has uplifted the society, that is Mahatma Phule ji. He himself got educated and made his wife also equally educated, and that was the pioneering stage for women's as a whole in case of India to get the education. Now let us move to the next stage, that when we talk about the types and nature of human rights violation for scheduled caste. अभी scheduled caste और scheduled tribes उनके लिए 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 341 जो है that is related to scheduled caste. scheduled caste, scheduled मतलब जो एक वो आर्टिकल में जिन कास्ट का लिस्ट बनाया गया है, दे आर कॉल्ड एज अ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। जो ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में, जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप्स है, दे आर बीन लिस्टेड इन द आर्टिकल 342. सो आर्टिकल 341 एंड 342 of the constitution are for safeguarding the rights of SC, scheduled caste and scheduled tribes. Now let us move ahead. Article 366 clause 24 defines scheduled caste are those races, cases, caste, tribes or groups of people who are deemed under the article 341 to be the scheduled caste for the purpose of this constitution. जैसे मैंने अभी बोला, जिनका नाम उस लिस्ट में आया है वही लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया। ओके, नाउ हाउ देयर राइट्स आर बीन वायलेटेड, लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन, forcibly evicting from the land and home. Such act is very common among SC population. Forcibly मतलब ज़बरदस्ती से, evicting मतलब निकाला जाना,
So forcibly evicting from his or her land and premises, interfering with the enjoyment of rights over land and even the water. तो उनको उनकी ज़मीन से निकाला जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे फार्मिंग करते थे, और उनको पानी भी बराबर से नहीं मिलता था, ये तक कंडीशन थी पहले, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज़ इनह्यूमन एक्ट कॉजिंग इंजुरी एंड इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं कि नहीं। तो फोर्सिंग एसीज टू वर्क एज अ बेगर, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को बेगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर बच्चे देखते हैं कोई तो भी पैसा तो देने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या बोलते हैं, एक टैक्टिस हो गया है, स्ट्रैटेजी बन गई है बेगर्स की भी, कि बच्चे को दिखाओ और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, ऐसा अभी हो गया है, ठीक है। मगर दिस इज़ द फैक्ट दैट द वुमेन्स आर फोर्स्ड इनटू द बेगिंग along with their child so that they can earn more money. At the same time, those who are in the teenage groups, these children are being forced for work. चाइल्ड लेबर हम लोगों को पता है, अगर चाइल्ड लेबर वो कई माइनिंग एरियाज़ में हो सकता है, या कहाँ कहाँ पे तो जो फैक्ट्रीज़ फायर वर्क्स की फटाका जो जलाते हैं ना, फायर वर्क्स की फैक्ट्री है तो उसमें काम करते हैं, या जरी मरी का काम रहता है, वहाँ पे बच्चों को हमेशा यूज़ किया जाता है। तो चाइल्ड लेबर्स करके ये सब SC/ST कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली पुअर एंड इलिटरेट। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर एज दे आर इलिटरेट एंड एक्सट्रीमली पुअर। 87% ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है कि जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मगर उनको उतना पैसा नहीं मिलता है कि वो आराम की ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी उनको पैसा मिलता है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, बट दे आर गेटिंग सम फूड। को कहाँ पे अनाज मिल जाता है और कहाँ को दो दो वक्त का खाना देते हैं और उनसे पूरा सारा काम करवाते हैं। तो ऐसे सब लोग जो है उनको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड लेबर। वेट बिगाड़ करके पहले उनको बोला जाता था, अभी भी कहीं कहीं पे ये सिस्टम चालू है। सो फोर्सिंग देम टू लिव द एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट। पुराने ज़माने में अपना जो टॉयलेट सिस्टम है वो भी बहुत अलग से होता था। तो ह्यूमन वेस्ट एक टोकरी में हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा पूरा जमा करके उसको फेंकना पड़ता था। ये भी काम उनसे ही करवाया जाता था जो सफाई कामगार है। नेक्स्ट इज़ असल्ट ऑन वुमेन। वुमेन पे ज़बरदस्ती, इधर आप देख सकते हो कहाँ पर ये जो आँख है उसके नीचे पूरा काला काला हो गया है, ये सब होता है। एंड वन वुमेन हैज़ टू फेस मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। वो कि विडो बन गई तो भी उसको बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको मारना ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो हस्बैंड्स जो रहते थे SC/ST कैटेगरी में, बहुत सारे जो मेल मेंबर है, दे आर ऑलवेज ड्रिंकिंग लिकर। सो डेली लिकर की वजह से क्या होता है, उनके पास पैसा नहीं रहता है और ऐसे वक्त क्या किया जाता है, वो अपने वाइफ को ही मारते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उसके पास पैसा रहेगा, वो कुछ काम करती रहती है, और अगर वो पैसा देने से मना करेगी तो डेफिनेटली क्या करते हैं, उसको मारते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है जो अपर कास्ट के लोगों ने अटैक किया है एक विमेन पे। तो वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, असम्मा, a 40 years old Dalit Jogini from Andhra Pradesh was physically attacked and verbally abused after she entered into the village temple as a part of the state government's anti-untouchability drive। अस्पृश्यता के खिलाफ एक ड्राइव जो स्टेट गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि कोई भी, वो मेन रहेगा, विमेन रहेगा, SC/ST कोई भी कैटेगरी का रहेगा, वो विलेज में जो भी टेम्पल्स है उसमें जा सकता है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, इसीलिए असम्मा शी एंटर्ड इन द
village temple, and that is why she is been physically attacked and verbally abused. उसको बहुत गाली गलौज भी दिया लोगों ने, ठीक है. फोर्थ इज फोर्सफुल वोटिंग. अगर वोटर्स कार्ड, एक तो बहुत सारे बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, these people don't know how to enroll their name in the voters list. अभी बहुत सारा अवेयरनेस आ गया है, कई एनजीओज भी काम कर रहे हैं, मगर फिर भी अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनका वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उनके पास रेशन कार्ड नहीं है, उनको उनका कुछ भी रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं मिल जाता है, कुछ भी रीज़न हो, मगर उनके पास वोटर्स कार्ड नहीं रहता है. तो इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और उनके जो फॉलोअर्स है, वो इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते. तो यहाँ पे जो लिखा है 2012, मतलब 8 साल पहले की ही बात है. मुन्ना लाल वॉज बीटन टू डेथ. उसको मारा गया, इतना मारा गया कि वो मर गया इन आगरा इन मार्च 2012, रिपोर्टेडली फॉर रिफ्यूजिंग टू वोट फॉर अ particular party candidate during the state assembly election of यूपी. यूपी के 2012 साल के जो स्टेट असेंबली, उनके यहाँ पे स्टेट असेंबली के जो भी इलेक्शन थे, उसमें उसने वोटिंग करने से मना किया, क्योंकि उसके पास वोटर्स कार्ड भी नहीं था और दूसरे किसी नाम से वो पर्सन जो डेड था उसके नाम से उस मुन्ना लाल को वोटिंग करने के लिए बोला गया. दैट टाइम ही रिफ्यूज्ड टू वोट, और उसके लिए क्या उसको पनिशमेंट मिली? उसको मार मार के इतना ये किया कि वो बेचारा मर गया. नेक्स्ट इज़ बर्निंग हाउसेस एंड प्रॉपर्टी. ये बहुत ही कॉमन, आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा रहेगा. फार्मर्स के घर जलाए जाते हैं, लैंडलॉर्ड आता है, ज़मीन मांगता है और ज़मीन देने से कोई इनकार करता है तो क्या हो जाता है, उनके पूरे घर जलाए जाते हैं ताकि वो दूसरी जगह पे चले जाए, ठीक है. दूसरा ये भी है कि कई बार आज के ज़माने में भी ऐसा हो रहा है कि जो लोग नया रोड कुछ बनने वाला है और रोड के साइड में वो रहते हैं, अगर वो रोड के आसपास रहते हैं तो उनको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन देना चाहिए. तो उनको बिना कॉम्पेंसेशन दे के भी उनको वहाँ से निकाला जाता है थ्रू बर्निंग ऑफ देयर ओन हाउसेस. सो उनके घर जलाए जाते हैं और उनको वहाँ से निकाला जाता है. द केस विच इज़ एग्ज़ाम्पल ही देना है तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है. ओडिशा में 50 हाउसेस बिलोंगिंग टू द मेंबर्स ऑफ एससीज वेर बर्न बाय अपर कास्ट पीपल इन जनवरी 2012. अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो सब एरियाज़ है, यूपी है, तो यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. नाउ in continuation with that, what are other problems they are facing? Parading nude or with painted face or body, thereby insulting the human dignity. पैरेडिंग न्यूड मतलब क्या है? पूरी तरह से नग्न करना, उनके कपड़े पूरे विवस्त्र करना हम लोग बोल सकते हैं. उनके कपड़े निकाले जाते हैं और उनको बहुत ही अटैक किया जाता है. उनके हाथ पैर में कालिक पोतना जिसे कहते हैं ना, वो किया जाता है. उनके फेस में काला लगाया जाता है. और दूसरा ये भी होता है कि गधे पे बिठा के, डोंकी पे बिठा के उनके पूरे गांव में, उसकी धिंड बोलते हैं ना, उनको घुमाया जाता है. तो ये एक तरीके से इंसल्ट ही, अगर कुछ भी नहीं किया है तो डेफिनेटली ऐसे टाइप्स की पनिशमेंट मिलना बहुत ही गलत है. अभी यहाँ पे एक लिखा है मैंने, पैरेडिंग न्यूड. ये भुटमंगास करके एक कास्ट है, कम्युनिटी है बोलना चाहिए, जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में खैरलांजी जो एरिया है वहाँ पे रहने वाले लोग. तो उन्होंने अपनी ज़मीन एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देने से मना किया. ये बहुत रिसेंट केस है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा. तो उस वक्त क्या किया, जिन जिन लोगों के घर में जितनी भी विमेंस थी उनको पूरी तरह से नग्न किया गया और चौराहे पे लेके आए. उनके फैमिलीज़ में जितने भी जेंट्स थे उनके भी कपड़े फाड़ दिए गए
और उनको भी चौराहे पे लाया गया। और उसमें से विमेंस जो थी, 2-3 विमेंस पे 1 घंटे तक उन्होंने रेप किया। बड़े, वो हम लोग अपर कास्ट के लोग बोल सकते हैं, उन्होंने रेप किया। और बाद ये कम था, इसलिए बाद में क्या किया, उन सब को फांसी पे लटका दिया। दे विल हैंग टिल डेथ। ये इतना सारा, मतलब कितना पनिशमेंट देखो। सिर्फ अपना ज़मीन, अपना लैंड, अपनी घर देने से जो मना किया, उसके वजह से अपर कास्ट के लोगों ने बहुत सारा उनको मतलब डेथ तक उनको लेके गए। तो ऐसा अगर होगा तो किसके राइट्स उनको मिलेंगे, किसके अधिकार उनको मिलेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक हम लोग बोल सकते हैं, इंडिया में ही हुई हुई, अपनी महाराष्ट्र में हुई हुई एक घटना है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन दिखता है, डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल। एक ही स्कूल में SC ST कैटेगरी के, जो दलित वगैरह कैटेगरी के जो है स्टूडेंट्स, उनको अलग से बिठाया जाता है और अपर कास्ट के लोगों को अलग से बिठाया जाता है। तो अभी भी कहाँ पे भी अगर आप बहुत एकदम रिमोट विलेजेस में जाओगे तो आज भी ये सिस्टम आपको दिखाई देगी, जो बहुत ही गलत है। अगर आप लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के या महात्मा जी फुले के ऊपर जो भी सीरियल्स चलती है टीवी पे, या उनके ऊपर आए हुए पिक्चर्स अगर आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह कुछ देखे, तो ये अवश्य दिखाया गया है कि उनको स्कूल में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाते। दे आर बीन फोर्स टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट स्टूडेंट्स। Lastly, we can say that murders and killing of the members from the SC category. चीफ ऑफ रणवीर सेना, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया है किसी का भी, मगर ये रणवीर सेना करके यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, हम लोग बोल सकते हैं जट लोगों की। तो प्राइवेट मिलिशिया ऑफ अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स were responsible for several killings of 61 Dalits in from December 90 and 96। 2 साल में उन्होंने 61 लोगों को मारा है। Hence, Chief of रणवीर सेना ब्रह्मेश्वर सिंह was been shot dead on 1 June 2012। ये जो मारने का सिलसिला था ना, वो भी पुलिस के सामने होता था, और उसको जो मारने का सिलसिला दलित लोगों ने चालू किया, वो भी पुलिस वालों के सामने ही किया, मगर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये हालत थी। ठीक है, तो दिस आर ऑल द ह्यूमन राइट्स वायलेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। Now when we talk about scheduled caste, scheduled tribes, human rights are what? They are the rights which are equal to all the human beings in every society. Now when we talk about the human rights, these rights has to be protected. If we are not in a position to protect that rights, then definitely these rights, why we should get these rights? Because we want to live in a dignity. We want to have the equality in our society. Then only our life will become more joyful, more peaceful. Okay, so today we will stop here. Thank you very much.